is the most searched thing on the Google, how to be a mental fit. So ma'am is there for tell us. Welcome ma'am. Hello. Hi, good evening everyone. Good evening. I hope everybody is not very sleepy after having a little breakfast, this kind of snack in between. So मैं पहले ना थोड़ा introduction हर चीज़ से पहले just give a very simple exercise for you guys to do. I'm sure सबके phone में एक QR code या एक link पहले ही आ चुका है. I hope you have got it. Yes or no? Yeah. So this is just another QR code. This is a self-assessment. मेरे पास इसके answers नहीं आएंगे. You can all scan this, and this is an anxiety self-assessment for yourself. Before we begin and move forward, थोड़ा सा आप लोगों को जगाने के लिए. So hello everyone. I am Dr. Rashi Agarwal. I deal with everything that's related to mind and mental health, which means I am a psychiatrist. So as you all know, mental well-being, mental health is a very upcoming thing and very talked about, और सब इसके बारे में आजकल बहुत जोर शोर से और आगे बढ़ के बातें कर रहे हैं. ऐसा नहीं है पहले इम्पोर्टेंट नहीं थी, इम्पोर्टेंट हमेशा से ही है, बट आई एम ग्लैड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कंसिडर करा. एंड थैंक यू सो मच SMC फॉर हैविंग मी हियर टू टॉक टू यू अबाउट मेंटल वेलबींग. सबने QR कोड स्कैन कर लिया बिफोर वी बिगिन फर्दर? Yeah, this is separate from that one that you have received is for occupational stress. ये आप साथ साथ कर सकते हो. So when you open this, you will get a home page, and then you will get. Yes, ma'am. हो गया स्कैन. एक फीडबैक फॉर्म आएगा 2 क्वेश्चन का, और उसके बाद आप एंजाइटी टेस्ट में जाके एक अपना सेल्फ असेसमेंट स्कोर भर सकते हो. सो द स्कोरिंग इज जस्ट विद यू, इट डज नॉट कम टू मी. तो एक सेल्फ असेसमेंट के लिए है कि अपना क्या लेवल चल रहा है, कितना स्ट्रेस में हम है, कितना नहीं. कहाँ इसमें नहीं आ रहा है? रेट नाउ में It might be little slow. The internet is slow. सर आ रहा है. नहीं आ रहा है, रेट नाउ आ रहा है, रेट नाउ. No, when you go नीचे स्क्रॉल करो. सर्वे फॉर्म अच्छा Yeah, इट्स yeah, ओके. just survey form, just fill the Okay, survey okay, form and then okay. move Yes, forward. yes. Has everybody reached the anxiety test? अभी आ जाएगा. यस सर्वे फॉर्म आ गया. Or you can just send it on the group, the link. यही जो पूरा ओपन होगा ना तो आ जाएगा. अभी ओपन नहीं हुआ फिर. Or I'll just ask the team to send that to you on the group. So I'm sure that everybody realizes mental health होता क्या है. हम दोनों चीज़ के बारे में बहुत थोड़ी सी बात करते हैं. What is mental health and then what is mental health issues. मुझे लगता है कि SMC की टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं है, because I just heard that you were clearly saying that it is a great place to work and you are certified for that. So I would like to give you all a very big round of applause. So it's good, it's a great place to work, but obviously you can start taking care of your mental health कभी भी. तो बहुत सारी नंबर्स की बात हो चुकी है, एंड ऑब्वियसली बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं नंबर्स की बात नहीं करूँगी यहाँ पे. आई विल जस्ट टॉक अबाउट डे टू डे थिंग्स, असेसमेंट्स, एंड यस कि हम उसे और बेटर कैसे कर सकते हैं. मुझे बताया गया मोस्टली यहाँ पे सेल्स वाले लोग हैं, टीम वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. सो वेरी सिंपल थिंग, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है. On a scale of 1 to 5, how would you rate how stressful your job is? Anyone? I would like an answer. Just on 1 to 5, कितना stress है आपके job में? 2. Okay. So the international data says it's 11. कि इस job में बहुत ज़्यादा stress scale high रहता है. Maybe we don't realize it, या maybe even if we realize it, we do not know how to process it further. So dealing with stress as a sales professional, हम क्या क्या ऑलरेडी करते हैं और हम क्या क्या इसको और बेटर कर सकते हैं. So working in sales is incredibly stressful, and US के डेटा के हिसाब से around 67% people approximately सिर्फ स्ट्रेस की ब्रेकआउट यानी पूरा बर्नआउट की स्टेज तक पहुंच चुके हैं. बिकॉज एवरी डे मोनोटनी में वही चले जा रहे हैं, वही काम करे जा रहे हैं. तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारा बिल्कुल बर्नआउट ही हो जाता है.
एंड मे बी हम वो चीज़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि हम रियलाइज करें कि क्या दिक्कत है और कहाँ पे स्टॉप करना है। बहुत सिंपल सी इसमें चीज़ें हैं जो आई थिंक कभी ना कभी सबने एक्सपीरियंस करी होंगी कि स्ट्रेस को हम बताएं कैसे, कि स्ट्रेस होता क्या और हमें फील कैसा होता है। बोलना बहुत आसान है, सबको लगता है कि स्ट्रेस में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बट एक्चुअली स्ट्रेस हमारी फिजिकली मेंटली बॉडी में दिखता कैसे है। सो सिंपल चीज़ें हैं जैसे एंग्जाइटी फील होना। तो एंग्जाइटी कैसे हो सकती है? किसी किसी के हाथ कांपते हैं, किसी को गट इश्यूज रहते हैं, किसी को बहुत क्रॉनिक हेडेक रहते हैं, किसी को फोकस में डिफिकल्टी रहती है, किसी को नींद में प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन अगेन मेंटल फटीग, काम कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, काम करे जा रहे हो या समझ ही नहीं आ रहा कि एक लूप में फंस गए दैट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बट मे बी एंड व्हाई दैट इज नॉट इनफ फॉर अस। तो एक ही और चीज़ बोली गई है कि क्वार्टर क्लोज करने से ज़्यादा बड़ा हेडेक कहीं होता ही नहीं है। तो प्रॉबेबली आई थिंक सम ऑफ यू माइट अग्री टू इट कि बहुत सारे हेडेक होते हैं पर क्वार्टर क्लोज करने वाला हेडेक सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है यहाँ पे आके। सो बर्न आउट इज कॉमन। आई होप किसी को अंडरस्टैंडिंग में कहीं भी कुछ चीज़ लगे, क्वेश्चन पूछना एंग्जाइटी के बारे में, तो प्लीज डू दैट ऑल्सो। सो वॉट योर कंपनी कैन डू फॉर यू, फर्स्ट विल डिस्कस दिस। क्या कर सकते हैं हम कि बर्नआउट ना हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी डिस्कस having seminars like these, addressing mental health issue is the first thing. पहले एक्सेप्ट ही करना कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं एंड देन उसके बारे में बात करना, दैट इज जस्ट वन स्टेप फर्दर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि हम इसे एक्नॉलेज करें और इस पर काम करना स्टार्ट कर दें एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करें। आई एम श्योर एवरीबडी यूजेस सोशल मीडिया लॉट। यू कैन स्टार्ट सर्चिंग स्टफ इफ यू फील कि कहीं ना कहीं मुझे ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। Just finding out why and what is happening is a step forward. And plus yes, थोड़ा जो स्टिग्मा होता है, हम हमेशा बात करते हैं कि हम स्टिग्मा कैसे रिड्यूस कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को लेके। नॉट मेकिंग फन ऑफ पीपल हु हैव दीज इश्यूज, यानी कि अगर किसी एक ग्रुप में बात हो रही है, उसने बोला यार मेरे को ना ऐसे एंग्जाइटी रहती है, काम करने में घबराहट सी होती है और काम हो नहीं पाता। सो व्हाट जनरली द अदर पर्सन सेइंग, जो जनरल रिप्लाई होता है, अरे कुछ नहीं होता, एक दो गहरी सांस ले ठीक हो जाएगा तेरे साथ, पानी पिया, घूमने चलेंगे ठीक हो जाएगा, या ये सब फालतू बातें होती हैं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट वी वांट टू एड्रेस, दैट इफ पीपल कम टू यू एंड दे आर ओपनिंग अप, लेट्स एक्सेप्ट इट विद ओपन हैंड्स एंड रियलाइज कि एक एक्चुअल इशू है। तो इसे डिसमिस करने की बजाय हम एक्सेप्ट करें और बल्कि हेल्प करें कि वो लोग कैसे और जाके आगे हेल्प ले सकते हैं इसके बारे में। बिकॉज अगर हम 1% को ये चीज़ बोलेंगे, मे बी अदर पीपल वॉन्ट टू कम टू यू एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग एंड दे वॉन्ट टू शेयर यू, तो उन्हें पहले ही लगता है कि इसके लिए ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे माहौल ऐसा है तो मे बी मैं ना बताऊँ। दैट इज़ वाई ऑन एन एवरेज स्टडीज़ में देखा गया कि 2 से 5 साल तक लोग सफ़र करते हैं और हेल्प उसके बाद देते हैं। बिकॉज एज इंडियंस ही हमारी टेंडेंसी यही है, हो जाएगा, लेट्स वेट, हो जाएगा, और थोड़ा देख लेते हैं, अरे खुद हो जाता है ये सब कुछ की। तो लेट्स नॉट सिट ऑन द प्रॉब्लम और उसे बढ़ाए नहीं, थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस बढ़ाइए जिससे कि हम हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी जो पहले भी सर की सबकी प्रेजेंटेशन हुई, जो ये वाली चीज़ थी नॉट मीटिंग कोटा, जो मेन एक स्ट्रेस वाला रहता है कि मेरा इतना है और ये नहीं मीट हो पा रहा। सेकेंडली कॉलिंग चले जा रही है, रिजेक्शन, फ्रीक्वेंट रिजेक्शंस जो हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इससे एक लूप वाली फॉर्मेशन की जो हमने बात करी, हम उसी लूप में फंसे हुए हैं। लीड मिल रही है, बात कर रहे हैं, फिर क्लोजिंग नहीं हो रही, फिर रिजेक्शन है, तो दैट दिस कंटिन्यूस साइकिल ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं स्टेपिंग आउट ऑफ द लूप, रियलाइजिंग कि हमारे साथ क्या इशू हो रहा है एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इन दैट। तो इतनी मेंटल हेल्थ की हमने बात कर ली, बट व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी हो, मतलब क्यों करते हैं सब इसके बारे में इतनी बात। सो ऑब्वियसली एक पूरी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ देखो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं होता है कि फिजिकल हेल्थ खराब होती है तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट नहीं होती, और मेंटल हेल्थ खराब होती है तो ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ भी साथ में अफेक्ट होती है। तो एक ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी होने से फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल वेलबींग भी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज दिमाग ही सही चलेगा तो बॉडी का भी ध्यान अच्छे से रख सकते हो। मोर ओवर द मोर वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, एक लाइक टूल्स होते हैं ना, प्लम्बर आते हैं अपने टूल्स लेके आता है, कारपेंटर अपने टूल्स लेके आता है। सिमिलरली मेंटल हेल्थ के लिए जो हमारे टूल्स हैं, हाउ टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, अगर वही हमारा उस समय दिमाग बढ़िया नहीं चल रहा और हम ऐसी सिचुएशन में हैं, तो वी आर टेंड टू मेक मोर मिस्टेक्स या टू बी नॉट दैट प्रोडक्टिव जितना हम एक्चुअली में हो सकते हैं।
सो रोज काम पे ड्रैग करके जाना, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होना, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोनोटोनस एक लाइफ हो गई है एंड टू द पॉइंट कि ऐसा लगता है क्यों ही काम करना पड़ रहा है लाइफ में, इससे अच्छा तो घर बैठ लो. So these are the very very few reasons that I can say, and obviously for happiness, for family life, for professional life, success, ये तो secondary और चीज़ है. Just the very very basics कि अपने अंदर से ही पहले